Panel discussion 4, lifelong learning in the digital era, building a continuous upskilling culture, for which I would like to invite our panelists on the dais. So we have Mr. Siddharth Singh, Director Merito, here with us. Come on, let's hear a huge round of applause. And we have Professor Ashish Semwal, Vice Chancellor, Maya Devi University, Dehradun. Dr. Adesh K. Arya, Pro Vice Chancellor, Haridwar University, Roorkee. Professor Satyendra Mittal, Pro Vice Chancellor, University of Patanjali, Haridwar. Professor P.S. Rana, Pro Vice Chancellor, Bhagwant Global University, Kotdwar, Pauri Garhwal. Professor Bhagwan Nautiyal, Vice Chancellor, Srimati Manjira Devi University, Uttarkashi. And Professor Bodhisattva Acharya, Registrar, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal. Can we hear it for all the panelists who are about to take the session forward? Come on everyone, can we hear it? Let's do a quick activity. Meanwhile, our panelists are coming and joining us on the dais. Can we raise our right hands up in the air? Come on, everybody, let's do it all together. Raise your right hands up in the air. Now, raise your left hand up in the air, along with the right hand. Yes, now please put your hands together. Have a huge round of applause. I made sure that you had your lunch, but it's not time to sleep now. Okay, so let's get energized for the upcoming panel discussion session. The topic is lifelong learning in the digital era, building a continuous upskilling culture with us. So I would like to hand over the session to you. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I know post-lunch sessions are not easy, and thank you for our host for doing that exercise. So today's topic is very interesting, lifelong learning in the digital era. But before we get into a topic, I request the panel members if they can introduce themselves, and then we'll deep dive into the topic. Very good afternoon to all. Myself, Dr. Bhagwan Nautiyal, Vice Chancellor, Srimati Manjira Devi University, located in Himalaya, Uttarakhand, Uttarkashi. Thank you so much. Myself, Professor P.S. Rana, Pro Vice Chancellor, Bhagwant Global University, Kotdwar, which is located in foothills of Himalaya and in Pauri Garhwal. I will just take a moment to ask one more panelist to join in. We have Dr. Manmohan Gupta, Dean Academics, Subharti University. Everybody, please put your hands together. Thank you so much, sir. Let's continue the session now. So if you can also quickly introduce yourself to the audience. Myself, Professor Manmohan Gupta. I am Dean Academics of the Subharti University, Dehradun. Nowadays, I am surviving as a Dean and Head Department of Education, Raj Bihari Bose, Subharti University. Thank you so much. So when we talk about formal education, it's just a starting point. Today the jobs are changing, the industry is disrupting. So as an individual, we also have to keep ourselves upgrading with the skill to stay relevant. So the big question comes that how do we... Actually, Dr. Bodhisattva Acharya, Registrar from Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University is here. So we would like to request him to join in for the panel discussion. Thank you very much, sir. So I was talking about today formal education is just a starting point. Today jobs are changing, the industry are disrupting. So as an individual, it becomes very, very important to keep ourselves updated, our skills to stay relevant. So the big question comes that how do we, I'll start with the first question, and this is for everyone. Everyone can add your point, that how do we create a lifelong learning, a habit, and what are the challenges that comes? कि अगर आज आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो आपकी बड़े challenges क्या है to make a lifelong learning a habit in a day-to-day life, sir? We will start with you, sir, and everybody can add a point. Yeah. First of all, good afternoon to all of you.
and really I am overwhelmed by the invitation and come to the point directly. Basically, learning is not a short process. Lifelong learning is also a process where we learn undoubtedly so many things. And learning is not only the learning. There are three components in the learning. One is learning, second is relearning, and third is unlearning. When we learn a thing, then, for example, a student joined the class and teacher told so many things. So when he or she, no matter the student is a male or female, but when they go back to their home, then definitely they open the book and they try to relearn. But in the relearning, there are so many things as a teacher discussed in the class. So they can be useful or sometimes they can be unuseful. So these things must be washed out from our mind. So that is the unlearning. So these three components for the entire process of learning are important. Second thing, as in digital era, we are talking about the digital era for the learning and so change is a very important factor. And the change is the second name of nature. When the apple felt, when the whole world saw the apple felt, but the Newton was the first who said why. This was the change of thinking. Otherwise, the whole world was seeing the apple is falling and falling. So in the same process, when we are going in the digital era, and digital era is the beyond ethics, in my opinion. Because we have to learn day by day. As I seen on LinkedIn, there was a poster shared by my friend or someone that RIP pen drive. So now pen drive is no more. Now the new things are entering in the digital era for learning. And definitely we should learn in the digital era and we should prepare ourselves. For example, if I am talking with this on this platform, that what we are learning in the digital era, maybe in the very next day, the new things there are welcoming to ourselves for the yes, we are here and that have to learn by heart. Thank you. Professor Nautiyal, if you can share your experience, what are challenges you face maybe as an individual, as an organization while implementing lifelong learning as a habit? I want to say in this topic, because I'm from very far, located in China border. This is the first university in the Uttarakhand where we are come from. चैलेंज की आप बात कर रहे हैं तो वो हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे सुदूर क्षेत्र से हैं जहाँ पर एजुकेशन का जो सूरज की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं, वो चैलेंज हम लोग फेस कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं. बिकॉज देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, नो एनी काइंड ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल्स. सो वहाँ पर अपने आप में एजुकेशन पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बिकॉज क्योंकि ये चीज़ मेरे फादर जो है एजुकेशन फील्ड से हैं और उन्होंने जब इस चीज़ को वहाँ पर फेस किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. मंजिरा देवी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लास्ट बॉर्डर पे है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है. गंगोत्री के पास हम लोग रहते हैं और वहाँ पर एजुकेशन पहुँचाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था. जहाँ तक बात आज की एक डिजिटल एरा की हम लोग करते हैं, तो आज के इस युग में मोदी जी ने बहुत एक डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है और हर चीज़ हमारे पास जो है फ़ोन पे है, हर चीज़ हमारे पास जो है जेब में है, ये मान के चलिए एवरीथिंग. तो हम लोग 2005 से हम लोग वहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं
और आज इतने धीरे धीरे स्लोली वहाँ पर पहुँच के जो है फिर अब विश्वविद्यालय पर हम लोग आज स्टेबल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाई वहाँ तक हमने ये शिक्षा को गरीब से गरीब बच्चों को यहाँ तक की जो है पलायन ना हो, वहाँ के बच्चों के लिए जो है कुछ इस टाइप के जो है स्वरोजगार उत्पन्न हो। और आज हम लोग देख रहे हैं हमारा 1200 स्टूडेंट आज प्राइमरी टू लेकर हायर एजुकेशन तक एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है और जिसकी हमें खुशी है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और चैलेंज को फेस कर रहे हैं। सो थैंक यू। बहुत ही अच्छा मतलब वैलिड पॉइंट है, जहाँ पे आपने बोला जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही है वहाँ पे आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल सर आपसे ये इसी लाइंस में, सर ने अपने बताए चैलेंजेस कि वहाँ पे क्योंकि लोकेशन ऐसी है तो वहाँ के अपने चैलेंज है, पर जो यूनिवर्सिटी शहर के पास में एक सिचुएटेड है, तो आपके अराउंड क्या ऐसे चैलेंजेस है जहाँ पे हमें एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर हमें एक माइंडसेट डेवलप करना है तो क्या ऑब्स्टिकल, क्या चैलेंज आप फेस करते हो? सबसे पहले तो आपने प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए मैं थैंक्स कहूँगा। और आपका प्रश्न है कि हमारे यूनिवर्सिटी क्या क्या चैलेंजेस झेल रही है अभी या उसको फेस कर रही है, तो मुझे लगता है कि आज जो रिसोर्सेज की हुई डिजिटल एरा ने कंटेंट को बहुत आसान बनाया है, मेथडोलॉजी को बनाया है, स्किल डेवलपमेंट के बनाए हैं, ट्रेनिंग के लिए बहुत उपयोगी है, नॉलेज ट्रांसमिशन के लिए जरूर उपयोगी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चे को जब उसका सदुपयोग करना सिखाएं। मैं बराबर बोलता हूँ अपने बच्चों को, जब वो कुछ इसको मोबाइल का यूज कर रहे होते हैं या कभी हमें ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम तैयार कराना होता है या कंटेंट डेवलप करना होता है, तो वो तुरंत उसका यूज करते हैं और मुझे अच्छा परिणाम मिलता है। जिसके लिए हम लोगों को लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए हमें काफ़ी देर बैठना पड़ता था, का पुस्तक स्तरीय है कि नहीं है ये देखनी पड़ती थी। आज कंटेंट जो एसेसिबल बनाया है वो डिजिटल एरा की वजह से, और ये सुखद संयोग है आपका जो प्रयास कि उत्तराखंड में एक एम्पावर्ड कैसे किया जाए इसको डिजिटल एरा के माध्यम से, और नॉलेज को एसेसिबल कैसे बनाया जाए, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उनको उसके उपयोग की भी जानकारी की ज़रूरत है कि कंटेंट बनाएं। तो मेथडोलॉजी के यूज़ तो कर सकते हैं हम लोग, एज एन एड के रूप में हम यूज करें इसको, उसको हम ऐसा तो नहीं कि उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर कंटेंट डेवलप हो रहा है जो, तो मुझे लगा अभी हमने एक बात कही जैसे डिजिटल मार्केटिंग। आपको 2 मिनट के लिए, आई थिंक वी हैव अनदर गेस्ट हु इज जॉइनिंग अस। Sorry to interrupt in between the session, but Professor Satyendra Mittal has just joined in, so I would like to invite him on the panel discussion session. Come on everybody, please welcome him with a huge round of applause. He is Pro Vice Chancellor, University of Patanjali, Haridwar. मैं बात कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने देखा अपने बच्चों को, हमने कहा आप कितना सदुपयोग कर सकते हैं, आप बताएं जरा, काम तो करते रहते हैं आप लोग। तो जो कंटेंट उन्होंने तैयार किया वो बहुत अच्छा रहा, तो उसे हमने क्या किया, हमने अपने कंसर्न इंचार्ज को बोला कि नहीं इसका एप्लीकेशन कैसे कराया जाए ये देखा जाए, कंटेंट को डेवलप करना ये सीखेंगे और प्रैक्टिकल इनको नॉलेज भी होगा। तो उसको हमें बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा उस चीज़ को मॉनिटर करते हुए। तो इसलिए आज ज़रूरत है, और लर्निंग को इफेक्टिव तो तभी होगी जब बच्चा उसमें रुचि लेगा, और बच्चा चाहता है कि इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है, आज समय बदला है, एज बदली है, एरा बदला है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को भी अपडेटेड होना पड़ेगा, इसके साथ साथ शिक्षक को होने की भी बहुत आवश्यकता है। So continuous learning बहुत ज़्यादा important है। So maybe if you can also share your views कि what are challenges you face not only as an organization but as an individually also, कि अगर आपको चाहिए कि I also want to get upgraded, मुझे I have to stay relevant, तो what are the challenges that you face in your day-to-day life कि when it comes to lifelong learning? देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को जब पढ़ाया जाए तो टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाए, लेकिन क्या सभी बच्चे एक ही लेवल के हैं? क्या सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं? नहीं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम।
और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हम ध्यान में रखकर बच्चों को नहीं पढ़ाते तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं। हमने पीपीटी के थ्रू पढ़ाना अच्छा लगता है कि हमें पीपीटी के थ्रू पढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। क्या पीपीटी के थ्रू हम बच्चों को नोट्स दे पा रहे हैं? क्या बच्चा पीपीटी के थ्रू सीख पा रहा है? टीचर्स को ये भी इंश्योर करना होगा कि हम जो क्लास में मटेरियल लेकर गए हैं क्या वो मटेरियल बच्चों के अकॉर्डिंग है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है। अगर वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है तो दैट मीन्स देयर इज़ नो लर्निंग। सो टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ साथ हमें बच्चों की क्वालिटी, उनकी मेंटल स्ट्रेस, उनके मेंटल लेवल, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी हम इफेक्टिव लर्निंग क्लासरूम में दे पाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करना कोई टीचर के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है जब तक हम अपने आप को ये नहीं मानेंगे कि एक खाली कप है, तब तक उसमें कुछ नहीं भरा जा सकता। हमें ये समझना पड़ेगा जब हम कुछ चीज़ सीखने के लिए बैठे हैं तो हम एक खाली कप करके बैठना पड़ेगा। अगर ये बाउल में सब कुछ भरा हो तो हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाउल खाली होगा तो डेफिनेटली हम उसमें कुछ ऐड कर पाएंगे। तो एम्प्टी कप होना बहुत ज़रूरी है, जिज्ञासु होना, क्यूरियोसिटी होना बच्चे के अंदर बहुत ज़रूरी है, और बच्चे के मेंटल लेवल को एक टीचर को समझना होगा, तभी इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी। थैंक यू। So maybe if you can also add, say some, maybe some, you can also give some points to this कि आपके अराउंड क्या challenges आप जो फेस करते हैं? Let me feel apologies for coming late because of the traffic jam. I got stuck up there. अभी तो मैंने जस्ट एंटर ही किया है और डिबेट जो चल रही है मैं उसका एसेंस जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो विद्यार्थी है वो काफ़ी चुनौतियों से घिरा हुआ है, काफ़ी कठिनताएं उसके सामने हैं, और मैं ये कहूँगा कि अभी ठीक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी स्वतंत्रता दी गई है बच्चे को। वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कोर्सेज अडॉप्ट कर सकता है, और इसके अलावा अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं कि वो फर्स्ट ईयर किसी सपोज़ उड़ीसा की यूनिवर्सिटी से करके आया तो सेकेंड ईयर वो किसी उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये सब स्वतंत्रता दी गई है। परंतु मैं खुद 24 साल IIT रुड़की में प्रोफेसर था सिविल इंजीनियरिंग का, और मेरी सारी उम्र एकेडमिक्स में ही निकली, बच्चों के बीच में ही रहा मैं। तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा हमारे जो भारतीय संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, उससे कहीं विमुख हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आवर इतिहास इज़ आवर फ्यूचर। हमारा, हालांकि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने दिया, इतिहास इज़ द फ्यूचर, लेकिन मैं कुछ हद तक सही कह रहा हूँ, इथिकली करेक्ट कर रहा हूँ, मे बी ग्रामेटिकली रॉन्ग बट इथिकली इट इज़ करेक्ट। हमें थोड़ा सा अपने बच्चे को जो हमारी रिच हेरिटेज है, जो कल्चर है, वो उससे भी उसको हमें कुछ परिचित कराते रहना चाहिए। मैं भी पिछले महीने क्या, अभी 15 दिन पहले मैं नालंदा गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे जो गाइड था उसने बताया कि पहले जब नालंदा विश्वविद्यालय शुरू हुआ था सर, तो वहाँ पे 16 उसके गेट्स थे और 10,000 स्क्वायर, 10,000 तो नहीं, 1,000 स्क्वायर कुछ किलोमीटर वो बता रहा था, उसमें करीब उसका इतना एरिया था। वो 16 द्वार जो गेट्स थे, वहाँ पे जो चौकीदार बैठता था उसका नाम द्वार पंडित था। और द्वार पंडित का काम ये था कि जब बच्चा कोई एडमिशन लेने आता था तो वो 4 सवाल पूछता था। 4 सवाल में 3 सवाल जिसने सही जवाब दिया उसको अंदर विश्वविद्यालय में आने की अनुमति मिलती थी। हमने वेद साग का नाम सुना है कि वो चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो 2 बार रिजेक्ट हुआ था, बाद में तीसरी बार वो तैयारी करके आया तो उसका एडमिशन मिला था। तो कमिंग बैक टू दी टॉपिक, बच्चे को आज AI की भी ज़रूरत है। बच्चा आज बहुत जल्दी उड़ान करना चाहता है, होमवर्क से थोड़ा दूर जाना चाहता है। अगर आप IIT की लाइब्रेरी देखें तो एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है। मैं खुद जब PhD कर रहा था तो आई यूज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन लाइब्रेरी। अब मैं कभी कभी जाता था तो लाइब्रेरी में बच्चे ही नहीं मिलते थे। इतनी हमारी 3 मंजिल की बिल्डिंग, लाइब्रेरी की 10-15 बच्चे, वो भी PhD के बच्चे होते थे। BTech MTech के बच्चे तो बहुत कम जाते हैं। जबकि मैं जब PhD कर रहा था मेरा गाइड कहता था कि वहाँ 15 घंटे बिताओ। तो इतना परिवर्तन आया है। बच्चा चाहता है कि हॉस्टल में ही मुझे मोबाइल पे ही सब कुछ मिल जाए,
तो थोड़ा सा कहीं हमें बच्चे को ग्रूम करना पड़ेगा, अपनी कल्चर से भी उसकी वाकफियत करानी पड़ेगी और उसके एप्टीट्यूड के अनुसार उसको हमें ग्रूम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यदि सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मानता है तो हमें उसको फ्रीडम देनी चाहिए। हर कोई आईआईटी के लिए क्यों जाए या हर कोई आईआईएम क्यों जाए? अगर वो एक्टिंग में उसका शौक है तो लेट हिम बी अलाउड टू बिकम अमिताभ बच्चन। तो उसकी ग्रूमिंग इस तरह से हो, उसकी एप्टीट्यूड के अनुसार हो, हम कोई चीज़ थ्रस्ट अपॉन ना करें। ये मेरे अपने अनुभव हैं एज ए टीचर। मैंने देखा हमारे यहाँ आईआईटी में भी, अगर मैं पतंजलि की बात करूँ, मैं पतंजलि में प्रो वाइस चांसलर हूँ, हमारे यहाँ से अभी एक करीब 22 बच्चों ने वहाँ पे, अभी जो उत्तराखंड में एक नेशनल स्पोर्ट्स हुए थे, 22 बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। और मैंने उनसे वार्ता करी कि तुम क्या बनना चाहते हो। फाइनली जब वो लौट के आए, जब स्वामी रामदेव जी ने उनका अभिनंदन किया, मैं भी था, आचार्य बालकृष्ण जी भी थे, तो उन बच्चों ने कहा कि हमें तो स्पोर्ट्स को ही अपना कैरियर बनाना है। तो और दे आर एक्सेलिंग, मतलब इवन हमारे यहाँ 2-3 प्रोफेसर्स हैं, वो तो अभी मॉरिशस होके आई है एक प्रोफेसर हमारी, अभी 5 दिन पहले लौटी, उससे पहले कोरिया गई थी इंडियन टीम का नेतृत्व करते हुए। तो कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो इसी में एक्सेल करना चाहते हैं। उनसे अगर बात करो कि इंजीनियर बन जाओगे क्या, डॉक्टर बन जाओगे क्या, वो कहते हैं नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, हम तो योगा को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो हम बच्चे की जो प्रतिभा है, जो बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, जो बच्चे की अर्ज है उसके मन में, उसके दिल में, उसके जहन में, उसको पेरेंट्स को पहचानना होगा, उसको टीचर्स को पहचानना होगा, उसके साथ संवाद करना होगा, 1-to-1 हमें उसके साथ डायलॉग्स करने चाहिए और हम बच्चे को उसी हिसाब से फिर उसकी ग्रूमिंग करें। हमारे यहाँ एक अजय वर्मा एक लड़का है पतंजलि में, वो स्केटिंग पे पूरा योगा करता है और दुनिया के कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें वो ना गया हो, उसको बुलाया जाता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट है, वो ये योगा का स्टूडेंट है। तो उसने इसी में अपने को एक्सेल किया, योगा ऑन स्केट्स, पूरा शिव तांडव नृत्य करता है वो। आप कभी देखिए यूट्यूब पे अजय वर्मा आप डालेंगे तो हमारा स्टूडेंट है वो पतंजलि का। तो इन लोगों को हम इसी तरह से चैनलाइज करें कि उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनको एक सही दिशा दें, उनको सही दशा दें, उनके अनुरूप हम एक वातावरण का सृजन करें, निर्माण करें। ये एक मेरे कुछ विचार थे अपने। अबाउट दी होमवर्क कल्चर, होमवर्क कल्चर बहुत अच्छी कल्चर थी। हम लोग प्राइमरी, मैं तो नगर पालिका के स्कूल से निकल के आया, उसके बाद सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, उसके बाद फिर आईआईटी में पढ़ा। तो होमवर्क जो हम लोग को मिलता था वो एक बड़ा सहायक होता था। अभी क्या है कि बच्चा होमवर्क को, अभी चैट जीपीटी मैंने वर्ड सुना अभी जब मैंने एंटर किया हॉल में, तो अब तो बच्चा मम्मी से पापा से मोबाइल छीन के वो चैट जीपीटी ओपन कर लेता है। वो बच्चा अब दिमाग ही नहीं लगाता, उसने अपने दिमाग को बिल्कुल सीमित कर दिया। ये मैं इसके व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ। आप लोग हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं शिक्षक होने के नाते इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, यदा कदा वो भी माँ की या पिताजी की देखरेख में वो कुछ 1-2 शब्द वहाँ से उठा ले तो ठीक है। मैं तो कभी चैट जीपीटी मैं इस उम्र में भी रेफ़र नहीं करता, जबकि आई कैन ऑलवेज डू इट। मैं तो अभी भी जब यदा कदा टाइम मिलता है, या जब मैं आईआईटी में था तभी मैं वेद, पुराण, उपनिषद जब मौका लगता था थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर लेता था, पढ़ता था। तो ये एक थोड़ा सा हमें बच्चे को बताना होगा कि अपना जो होराइज़न है उसको काफ़ी विस्तार करे, उसको हमारी अच्छी किताब पढ़े और टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़े। जहाँ डाउट हो तो पहले जैसे कल्चर थी कि हम अपने चाचा जी आए तो एकदम उनसे 2 सवाल लेके बैठ जाते थे किताब कि चाचा जी ज़रा ये सवाल मेरा बता दो कैसे सॉल्व होगा। अब वो कल्चर ही ख़त्म होती जा रही है। वो ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, हमें निबंध लिखवाते थे। जैसे मैं तो भगवान की दया से बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा सारी उम्र, तो वो कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हम अपने परिवारों के साथ इस बहाने जुड़ते भी हैं। मामा जी को भी याद रहता है कि भांजा मेरा आया था, उसने मेरे से निबंध लिखवाया था, या बच्चे को भी याद रहता है कि निबंध में जब वो टॉप करेगा कि मेरे मामा जी या मेरे चाचा जी ने वो लिखवाया था। तो हमें वी हैव टू इनकलकेट और वी हैव टू रीडिस्कवर आवर दिस कल्चर एंड हेरिटेज, ताकि इसमें परिवार भी जुड़ें,
पहले संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरे ग्रैंडफादर मुझे पढ़ाते थे, वो खुद 1918 में रुड़की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। बहुत अच्छा गणित, बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर, उनको देख के मैं सिविल इंजीनियर बना, मेरे रोल मॉडल रहे वो। तो वो एक जो परंपरा थी हमारी, जो संस्कृति थी, उसका फिर से पुनर्उदय होने की बहुत आवश्यकता है। और बच्चों को, ठीक है, एआई को जानना उसका अधिकार है बच्चे का, उसको आवश्यक भी है, परंतु उसके साथ साथ हम उसको प्रेरित करें कि वो लाइब्रेरी में भी जाए, किताब को सर्च करना तो कम से कम आए, किताब का जो कैटेलॉगिंग होता है वो तो उसको पता चले कि कैटेलॉगिंग कैसे होता है, कि वो जाए, ढूंढे, गणित की किताब, रेसनिक हेलिडे की किताब ढूंढे, फिजिक्स पढ़े और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, कोर्स की पढ़े और इसके अलावा हमारे इतिहास की पढ़े, तभी एक हम अच्छे विद्यार्थी का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरे कुछ अपने विचार थे कि थोड़ा सा इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें व्यक्ति का, एक भविष्य के नागरिकों का निर्माण करना है, जिसमें शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है, साथ साथ पेरेंट्स की बहुत अहम भूमिका है कि बच्चे के साथ संवाद करें। अभी क्या होता है, मैंने देखा कुछ, खैर मेरा तो बेटा बहुत बड़ा है, अमेरिका में जॉब करता है, लेकिन छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल से आए सीधे अपने कमरे में घुस जाते हैं। वो परिवार के साथ बैठना पसंद नहीं करता, वो माँ की गोद में या माँ के साथ सब चीज़ें बताना पसंद नहीं करता कि स्कूल में आज क्या हुआ क्या हुआ। वो एक विमुख होता जा रहा है। तो इस सब का हमें बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो टूटते हुए रिश्ते हैं या जो बिखराव है परिवार में, जिसके कारण हमारा बच्चा खराब हो रहा है। एक और बस मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग, मैं खुद पेरेंट हूँ, हम लोग बच्चे के ऊपर दबाव बना देते हैं कि तेरे 97% मार्क्स आए, अरे बहुत कम है, शर्मा जी के बच्चे को देख, उसके 98% नंबर आए हैं। शर्मा जी से बात करेंगे तो वो कहेंगे अरे मैं तो अपने बच्चे को पीट रही थी, अभी डांट रही थी, क्योंकि गुप्ता जी की लड़की के तो 99% नंबर आए। तो ये भी थोड़ा सा, कोटा में देखिए कितने सुसाइडल केस हो रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का को समझना होगा, इन सब ये चीज़ें, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, हमें ये भी इस पर विचार करना होगा और इसके हमें अच्छे अच्छे तरीके ढूंढने होंगे। मैं समझता हूँ मैंने अपना टाइम काफ़ी लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने एक बहुत ही डिफरेंट मतलब एक पर्सपेक्टिव दिया, उस पर अलग से मतलब एक लंबी डिबेट हो सकती है। सर आई थिंक आपने एक पॉइंट बोला था अभी कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट लर्निंग कर्व, कि हर बच्चे का समझने का, सीखने का एक डिफरेंट लर्निंग कर्व होता है। व्हेन टेक्नोलॉजी इज इन प्लेस, तो टेक्नोलॉजी कैन बिकम मोर पर्सनलाइज्ड, मोर एक्सेसिबल। सो आप लोग कैसे लेवरेज करते हो टेक्नोलॉजी को अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूशन में, कि बच्चे की जो लर्निंग है वो ज़्यादा पर्सनलाइज बन सके, ज़्यादा उसको एक्सेसिबल बन सके? हर कोई अपना मतलब इफ यू कैन कोई अपना व्यू शेयर कर पाए। विद आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद प्रोफेसर आचार्य, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं, जो सर हैं जिन्होंने बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी शायद बॉर्डर के पास है और वहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा स्टडी के लिए अट्रैक्ट करना क्योंकि हम सभी लोग उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के अंदर अपने अपने इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं और वाकई उत्तराखंड द रिचेस्ट स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, नो डाउट। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अगर आप देखेंगे रिमोट एरिया है बिल्कुल। मैं आज भी लैंडस्लाइडिंग होती रही, लेकिन आना था तो चूँकि उसको सबको देखते हुए और सबको जानते हुए यहाँ पे आए। और आप ये समझ लीजिए कि पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक जगह है पोखड़ा, जहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी है। वहाँ बच्चा नहीं, बच्चे के मम्मी पापा भी, वो पलायन, इतना ज़्यादा पलायन हो चुका है कि उनको बुलाना, उनको समझाना, पढ़ाना सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि बच्चा पहले पढ़ने आए, क्योंकि जो फैसिलिटी हम उसे देना चाहते हैं, जो फैसिलिटी हम उसके लिए करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में सब कुछ अवेलेबल है वहाँ। लेकिन इस स्टेट की दुश्वारियों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर अगर एक दिन वहाँ तूफ़ान आ जाता है तो 3 दिन वहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। अगर हम डिजिटल ईरा के अंदर सच में हम जाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को वाकई कुछ देना चाहते हैं, और जितने हम लोग सब यहाँ एजुकेटर्स बैठे हुए हैं, तो हम एक चीज़
एक छोटा सा शेयर मैं आप सबके लिए, मतलब चूंकि हम सभी उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल ऑनेस्टली गिविंग द एजुकेशन, लेकिन मानता हूँ दुश्वारियाँ हैं नया सूरज उगाने में, मानता हूँ दुश्वारियाँ हैं नया सूरज उगाने में, मगर हम सबको बेवफाई का हुनर नहीं आता। थैंक यू। एजुकेशन को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाए, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाए ये चीज़ ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चे के साथ पर्सनल कनेक्शन एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पर्सनल कनेक्शन टीचर का बच्चे के साथ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के साथ आज हम बच्चे को सिखाएं उससे ज़्यादा मटेरियल बच्चे के पास है। एक टीचर क्लास में मटेरियल जितना लेके जाता है ना, उससे ज़्यादा मटेरियल बच्चा खुद से पहले ही लेके बैठा है, उससे पहले वो पढ़े हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ उसको उसके साथ एक कनेक्टिविटी बनानी है, और कनेक्टिविटी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाएं या अपने पर्सनल रिलेशन से बनाएं, दैट इज़ मैटर। हमें पर्सनल रिलेशन भी बनाने होंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को भी आज पीछे नहीं छोड़ सकते। आज का समय है, बच्चे को कदम से कदम मिलाकर अगर हमें लेके जाना है, बच्चे के साथ हमें आगे बढ़ना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो टीचर्स को भी सीखना होगा और बच्चे को भी सीखना होगा, और दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होगा, और बच्चे की प्रेजेंट कंडीशन को भी समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चे के पास आने के लिए साधन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, बहुत सारी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं इससे पहले सहारनपुर में एक कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो मैं वहाँ पे बच्चों को माइक्रो टीचिंग हमारे यहाँ होती है बीएड में, मैं माइक्रो टीचिंग बच्चों को करा रहा था। माइक्रो टीचिंग के दौरान हमने बच्चों को कहा कि बेटा आपको जब पढ़ाना है तो उसके लिए आप एक चार्ट शो करोगे और चार्ट के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाओगे। उसने कहा ठीक है सर। अगले दिन वो चार्ट लेके आई लड़की और उसने चार्ट से बच्चों को पढ़ाया क्लास में। नेक्स्ट डे फिर उसको लेसन प्लान करना था, फिर से चार्ट लेके आना था, तो उसने उसी चार्ट की बैक साइड पर अगला चार्ट बना दिया। तो मैंने बच्चों को बोला बेटा आपने चार्ट के पीछे फिर से चार्ट बना दिया, ये तो चीज़ ठीक नहीं है, आप इस चार्ट का यूज़ नहीं कर पाओगे, एग्जामिनर को अगर आपको दिखाना होगा तो आप नहीं दिखा पाओगे। तो मैंने कहा बेटा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, केवल 10 रुपये का एक चार्ट आता है, मैक्सिमम 10 रुपये का 15 रुपये का चार्ट आ जाएगा। तो उस लड़की का मतलब वो वाक्य मुझे आज तक भी याद है, बोली सर 10-15 रुपये भी कहीं से आएंगे। बाई गॉड मेरी आंखों में आंसू थे उस समय। मैं फील कर रहा था कि मतलब 15 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट किसी बच्चे के लिए हो सकती है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ हमें पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा। मैंने फिर उस बच्चे को कहा बेटा ठीक है, आज के बाद से आप चार्ट अपने पास से नहीं लाओगे, कॉलेज से मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चे के साथ एक पर्सनल कनेक्शन हमें बनाना जरूरी है अगर हम लर्निंग को इफेक्टिव करना चाहते हैं। केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सब कुछ कर देंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें पर्सनल रिलेशन बच्चे के साथ बनाना होगा, एक बच्चे के लेवल पे जाकर समझना होगा, बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझना होगा, तब हम टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। सर आप शेयर कर पाए कुछ अपने व्यूज़ कि कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प के थ्रू हम बच्चे की पढ़ाई और पर्सनलाइज कैसे बना सकते हैं। अभी सर की बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ, और डॉक्टर साहब ने बताया, काफ़ी कुछ समाहित किया उसमें, जो कि आज हम अपने बच्चों में देख रहे हैं। और जहाँ हम लोग जोर दे रहे हैं इंफॉर्मेशन गेनिंग का, या जिसको नॉलेज बोल रहे हैं हम लोग, तो ये अगर देखेंगे हम लोग तो ज्ञान वाकई हम इंफॉर्मेशन तक जोड़ रहे हैं उसको, और टेक्नोलॉजी तो काम कर रही है आपको प्रोवाइड कराने का इंफॉर्मेशन का। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव एंड वी कैन एसेस बाय सिंगल क्लिक, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई आवर बिहेवियर एज एक्सपेक्टेड। लेकिन ऐसा व्यवहार परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें कुछ और चीज़ नहीं जुड़ेगी। वो कौन सी चीज़ है? शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की डांट फटकार। आज देख रहे हैं हम लोग, बराबर यूट्यूब में देखते हैं कि कुछ, बल्कि वो जोक के दिखाते हैं कि वो मम्मी देख रही है, वो तो बच्चे से भी बात हो रही तो वो फ़ोन पे लगी, तब तो बच्चा भी देख रहा, कोई और से भी देख रहे। हम इतने आदी हो चुके हैं अभी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने या एआई ने या ये इंफॉर्मेशन ने, ज़रूरत है, आपकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ कि हमको इसको ऐड के रूप में यूज करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गेनिंग के लिए करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को, एक टेक्निक को कैसे डेवलप किया जाए अपने में, ताकि हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएं। क्योंकि कंटेंट हमने प्रेजेंट करना है बच्चे को, हमारा उद्देश्य क्या है? सिखाना उसको है,
एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस लाना है। बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है उसमें, तो रुचि कैसी जगाई जाए। आज नई नई चीज़ों में देखना, बच्चा जो है नई नई चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रोन होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो सबसे पहले विल हैव टू डेवलप हिज इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो मेथडोलॉजी को या ये टेक्नोलॉजी को, जब टेक्नोलॉजी का नया प्रादुर्भाव तो ऐसा लगा कि शिक्षक की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा लगने लगा था। जैसे आजकल एआई का समय आया गया है, दौर आ गया है, हर काम एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम अगर अभी देखें, एक प्रश्न हम में आ सकता है कि मनुष्य की जगह ले लेगा, लेकिन मशीन तो मशीन है, उसको तो आप ऑपरेट करेंगे तो उतना काम करेगी, उसमें नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है। मैं किसी पेरेंट से बात कर रहा था तो मैंने कहा ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ही अगर आप नॉलेज कहें तो फिर ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल जाएंगे आपको। अरे जब तक इफेक्टिव लेवल नहीं होगा, उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम कौन सा डेवलपमेंट की बात करेंगे। एजुकेशन जो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है, जिसमें नॉलेज, उसके इमोशंस, सोशल कैरेक्टर, मॉरल, ओवरऑल जब उसका होता है तब हम बात करते हैं कि हाँ इसका विकास हुआ है बच्चे का। और हम एक इन्फॉर्मेशन देने की बात करें, टेक्नोलॉजी ठीक है, हम उसका यूज करें, लेकिन अपने कंटेंट को प्रभावशाली कैसे बनाएं। हम अपने टीचिंग में आईसीटी का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, केवल ये कि अपने प्रेजेंटेशन को, फॉर एग्जांपल बच्चा जो है क्लियर नहीं कर पा रहा है अपने आप को, वो समझ नहीं पा रहा, तो कंटेंट को या वो डायग्राम को या जो हम दिखाना चाहते हैं उसको कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम उसमें कभी कभी लेक्चर मेथड की कोई कमियां हो जाती हैं कि कुछ कंटेंट मेन चाहे वो छूट जाता है, ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन में ऐसा दिखाएं, पावर पॉइंट में ऐसा रखें कि हम बच्चे के उस पॉइंट पे बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी, हाँ ये कहीं मैं समझता हूँ कि इसका दुरुपयोग ना हो। इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग पे जोर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन देगा? एक टीचर देगा। जब तक उसको समझाएगा नहीं, हम देख रहे हैं कई बार हमारे बच्चे बहुत समय तक फ़ोन पे लगे, किसी का कोई, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो हम लोग अपने भी, मैं पहले बात करूँ, जब मोबाइल नया आया था मैं वेस्टेज ऑफ टाइम मानता था, कई लोगों को देखता था लगे हुए फ़ोन पे, लेकिन आज हम लोग भी आदी हो गए और कुछ ज़रूरत भी हमारी हो गई है। मेल के लिए जहाँ हम कंप्यूटर का यूज़ किया करते थे, आज तो बस चल रहे हैं हम लोग मेल चेक करते रहे, इन्फॉर्मेशन ले रहे, कोई सूचना देनी किसी को या सूचना प्राप्त करनी तो जेब में है, सीधा निकाला उसमें, कोई कंटेंट देखना है चलते चलते देख रहे हैं। लेकिन कहीं हम उसके इतने आदी न बन जाए कि हमारा वो इफेक्टिव लेवल प्रभावित हो, और ये होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जो है इन्फॉर्मेशन तक ही सीमित रहेंगे, अपने इफेक्टिव लेवल को मजबूत नहीं करेंगे या साइकोमोटर डेवलपमेंट को नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम पूरा ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन शिक्षक को ये बहुत ज़रूरत है कि उसमें, अब हम बोल रहे हैं कि वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो ले लिया उसने, लेकिन वैल्यू डेवलपमेंट कहाँ से होगा उसमें, जब तक उसके सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमने तो उसको दिखाया ही नहीं उस चीज़ को, उसने जाने कि शिक्षक का स्थान क्या होता है, गुरु का स्थान क्या होता है। बहुत कुछ वैल्यू तो हमारे इससे डेवलप हो जाते थे, जब बच्चा गुरु के पास जाता था, वो झुक के जाता था, वो सीखता था कि नहीं मुझे प्राप्ति होनी है, मुझे बहुत कुछ मिलना है यहाँ से। लेकिन अब आवश्यकता नहीं रहेगी, उसने इन्फॉर्मेशन ले ली, उसको क्या जरूरत है, गुरु क्या चीज़ हो, उसके लिए तो गुरु ये मोबाइल हो गया। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करें, ज़रूर करें, क्योंकि हमें अपडेट रहने की आवश्यकता है, लेकिन उसको ऐड के रूप में यूज करें, और उसको कितना करना चाहिए थोड़ा इस पर भी हमें उसकी ज़रूरत है, बंदिश लगाने की, उसको डिलिमिट करने की। मैं इतनी कहते हैं। अगर लेट्स से सर ने बात करी कि ना पर्सनलाइज के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। You mentioned there are 1200 plus kids in your university campus. So how do you motivate them to complete their courses, complete their curriculum? आप क्या कैसे करते हो, मतलब उनको मोटिवेट? मैं प्रोफेसर राणा जी की बात से बहुत सहमत हूँ। आपने जो पॉइंट बताएं वो आज वाकई जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल हमारी लाइफ में इतना आदी हम लोग उसके हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं, हम लोग अपने बच्चों को भी देखते हैं तो वो बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाते हैं, बिना मोबाइल के सोते भी नहीं हैं, उनको मोबाइल देखते देखते उनको जो है नींद। तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका असर है। जहाँ तक मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी का,
सर ने कहा कि हाँ, जहाँ तक हमें उसका यूज़ करना है यूज़ करें एंड देन उसके बाद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने संस्कार जब तक हम लोग उनको नहीं देंगे तो हम लोग इसको अपने बच्चों के साथ अन्याय करते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या है हमारे बच्चों को पता नहीं, हमारी बोली भाषा क्या है हमारे बच्चों को पता नहीं। तो ये चीज़ जब तक रहेगी तो मैं समझता हूँ कि जो है आने वाले टाइम पे जो है बहुत टफ समय आता जाता है। इसके लिए हमें उनको उनके संस्कार को उनके जो उनके नियम हैं उनको जो है बताकर इस टाइप से अगर हम लोग उसको करते हैं तो फिर जो बेनिफिट जो है स्टूडेंट की लाइफ में होगा ज़रूर। सर अगर आप बता पाए कि कैसे आप लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो टू कंप्लीट द कोर्स और कैसे वो एक्स्ट्रा कोर्स ले सकते हैं, सो हाउ डू यू आर कीपिंग देम मोटिवेटेड? अगर आप पतंजलि के बारे में पूछें तो वो कल्चर बिल्कुल अलग है, आईआईटी की कल्चर बिल्कुल अलग थी। मैं पतंजलि की बात कर लेता हूँ। हमारे यहाँ सुबह 4 बजे उठना सबको अनिवार्य है बच्चों को, और उठते हैं वो योगा करते हैं। योगा के बाद फिर उनको हवन में बैठना होता है। हवन के बाद वो लोग जाते हैं और शायद नहाते हैं या कुछ लोग नहा के आते हैं। जो मुझे बताया गया कि वो नहाते हैं जाके, और नहा के फिर वो सीधे मेस में जाके नाश्ता करते हैं, और 8 बजे उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं हमारे यहाँ। और अब जो कोर्स की बात है, कोर्स को पूरा करना ये टीचर की शिक्षक इसके लिए उत्तरदायी है। और हमारे यहाँ जो शिक्षक कोर्स किसी वजह से पूरा नहीं कर पाता, उसके घर में शादी थी कुछ थी, तो वो रविवार को कोर्स पूरा करता है और बच्चे को पूरा मौका दिया जाता है कि वो आए, शिक्षक के साथ एक्स्ट्रा आवर्स वो ले, और शिक्षक की भी ये कर्तव्य बन जाता है कि वो उसको कोर्स को अपने पूरा करे। ये हमारी एक दिनचर्या है विश्वविद्यालय की। और शनिवार को हर बच्चे को 4 बजे, हर बच्चा क्या हर स्टूडेंट के साथ साथ सभी टीचर्स को हवन में बैठना ज़रूरी होता है। और ये हम लोग इस टाइप की कल्चर वहाँ पे पैदा कर रहे हैं। जो भी सर ने भी कहा कि संस्कृति से दूर हमारे बच्चे ना जाएं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति को ना भूल जाए वो। तो कोर्स हमारा पूरा नियमित रूप से पूरा होता है, और 50% हमारे यहाँ पेपर्स बाहर की यूनिवर्सिटी से बन के आते हैं, 50% हमारे अपने होते हैं। तो हर शिक्षक इसको एक जिम्मेवारी के रूप में अपने कोर्स को लेता है, और इस तरह से हमारा सिलेबस पूरा रहता है। इसका कोई इशू मेरी जानकारी में तो नहीं आया कि कोई टीचर ने क्लासेस ना ली हो, चूँकि हर टीचर के ऊपर एक नियंत्रण है श्रद्धेय स्वामी जी का, आचार्य जी का। तो हर कोई उस संस्कृति को फॉलो करता है, तो हमारे यहाँ इसकी बात नहीं है। दूसरा जो बच्चों को संस्कार की बात है, हमारे यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी शायद बस 30 सेकंड रह गए हैं घड़ी के अनुसार। हमारे यहाँ एक शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता होती है सर, और शास्त्र स्मरण का मतलब है कि बच्चों को चॉइस दे दी जाती है कि वो रामायण पूरी रटे या महाभारत पूरी रटे या कठोपनिषद रटे या कोई भी उपनिषद उठाए या कोई भी हमारा ग्रंथ उठाए। 4 वेद हैं, वेदों में भी वो कुछ भी चाँट ले। और वो फिर प्रतियोगिता होती है, 1 महीने का टाइम उनको दिया जाता है। प्रतियोगिता में कई वाइस चांसलर्स एक जूरी मेंबर की तरह से आते हैं, और उसमें शास्त्र स्मरण में बच्चे से जज पूछता है, जो जूरी मेंबर्स जैसे हम लोग बैठे हैं, बच्चे इधर बैठे हैं, हाँ बताओ बच्चे क्या सुनाओगे? तो बच्चा कहता है जी कठोपनिषद में कहीं से पूछ लीजिए। तो वो कठोपनिषद उसको पूरा याद होता है, जो पूरा सुना देता है। या जो भी जूरी ने पूछा कि 116वां मंत्र बताओ या कुछ भी, किसी भी, या 20 पेज पे क्या लिखा हुआ है, जो सही जवाब देता है तो 11 लाख रुपए का उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो ये प्राइज़ 11 लाख, 5 लाख होते होते 1 लाख तक आते हैं, और ये प्रतियोगिता टीचर्स को भी देनी होती है। तो इस तरह से हम लोग अदर देन दी सिलेबस, हम ये सब भी उसको बच्चे को अपना ये हम ज्ञान बाँच रहे हैं, एक अपनी ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है, वो हमारे यहाँ कोई इशू नहीं होता, हम लोग सिलेबस पूरा करते हैं। बच्चे हमारे पूरा अनुशासित ढंग से हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ये हमारी पतंजलि की खूबी है। आईआईटी की भी बस बात मैं अंतिम वाक्य में कहूँ कि आईआईटी में भी हम लोग एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग 43 लेक्चर्स हमारे लिए कंपलसरी था, और आईआईटी में टीचर्स को बहुत फ्रीडम दी गई है। वो ऑनलाइन भी क्लास ले सकता है, संडे को भी ले सकता है, रात को भी ले सकता है, शनिवार को भी, लेकिन 43 लेक्चर्स तो उसको लेने ही लेने हैं, और बच्चे को भी आना ही आना है। तो वहाँ पे भी मैंने एक अनुशासित वातावरण देखा। तो यही कारण है कि
IIT का नाम है पूरी दुनिया में, और हमारी पतंजलि का भी नाम काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। सर आई थिंक अगर और टाइम होता हम और बात कर पाते, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल रैप दिस हियर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पैनल मेंबर्स फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स और एक्सपीरियंस, एंड टू द ऑडियंस थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello. Thank you very much to all the panelists for this amazing session. And now it's time for felicitation part. I would like to invite Gagan sir from IBN to join in to do. People who are our sponsors, you know, our partners who are here, can you please join in to do the honors? To request the moderator to kindly felicitate each and everybody. And yes, can we hear a huge round of applause? Honorable VC from Jigyasa University, can you please join in to do the honors? Applause for our moderator for this session, Mr. Siddharth Singh, Director Merito. Come on everybody, please put your hands together for everybody on the panel. We also have Professor P.S. Rana, Pro Vice Chancellor, Bhagwant Global University, Kotdwar. Thank you very much, sir, for joining in for this panel discussion. Come on, everybody, let's give a huge round of applause. Professor Bhagwan Nautiyal, Vice Chancellor, Srimati Manjira Devi University, Uttarkashi. Professor Dr. Bodhisattva Acharya, Registrar, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University. Let's hear a huge round of applause. And special for being a special part for this panel discussion session. Come on, ladies and gentlemen, let's hear it for Dr. Manmohan Gupta. Thank you so much to all the panelists for joining in and taking this session.